بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد آصف عزیز آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل ہماری اردو میں خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ آخرکار اتنے دنوں کے بعد JSSC کا ایگزام آج مکمل ہو چکا ہے اور آپ لوگ ایگزام دے کے اپنے گھروں کو جا رہے ہوں گے یا تو بہت سارے لوگ اپنے گھر کو پہنچ گئے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایگزام بہت ہی اچھا گیا ہوگا، کیونکہ پیپر میں نے دیکھا تو اس میں سے 8 سے 10 کوشچن ہی ایسے ہیں جو مشکل کے خانے میں ہم اسے رکھ سکتے ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جو آؤٹ آف سلیبس ہے۔ آپ نے ایگزام دیا ہوگا تو یہ چیز کا اندازہ آپ کو بھی بخوبی ہو گیا ہوگا کہ کچھ سوالات آؤٹ آف سلیبس ہیں، اور ہماری کتاب نگار اردو اور بہار اردو کو جنہوں نے مطالعہ کیا ہوگا اچھے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایگزام جو ہے بہت ہی اچھا گیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے کوشچن، بہت سارے سوالات ہماری کتاب سے ہو بہو نقل ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی CGL کا جو آج ایگزام ہوا ہے اس کا کوشچن پیپر ہے، اور یہ سیریز B کا کوشچن ہمارے پاس ہے، اور ہم لوگ آپ کے سامنے میں اس کا آنسر لے کے حاضر ہوا ہوں، اور اس کو ہم لوگ ملاتے ہیں، اور آپ لوگ کمنٹ باکس پہ لکھیے گا کہ آپ کا کتنا اسکور آ رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، کوشچن کا آنسر جانتے ہیں ہم لوگ۔ پہلا نمبر کوشچن ہے، سفید و سیاہ میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہوگا تضاد۔ اس کا صحیح آنسر ہوگا تضاد۔ کوشچن نمبر 1 کا صحیح آنسر ہوگا تضاد۔ ہمارے پاس B سیریز کا ہے، یہ دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ ہے، ہم ادا کر چلے، تو یہاں صحیح جواب ہوگا حق بندگی۔ حق بندگی، ٹھیک ہے۔ 3 نمبر سوال ہے، لہو میں نہا کر چلے، لہو میں نہا کر چلنے سے پہلے شاعر کو کس بات کی آرزو تھی؟ اس کا صحیح جواب ہوگا B، محبوب کی گلی کی آرزو تھی۔ 4 نمبر سوال ہے، پرستش کرنا کسے کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہوگا عبادت کرنے کو، C نمبر۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 5 میں آتے ہیں، غالب نے ابتدا میں کیا تخلص اختیار کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا A، اسد۔ 6 نمبر سوال ہے، غالب کے اردو خطوط کے مجموعہ کے نام کیا ہیں؟ اس کا جواب ہوگا D، عود ہندی اور اردو معلی۔ 7 نمبر سوال ہے، میر کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب اس کا ہوگا C، لکھنؤ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 8 میں آتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، میر تقی میر نے اردو شعراء کا تذکرہ کس نام سے لکھا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا A، نقاط الشعراء۔ 9 نمبر سوال ہے، ہاتھ آنا کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا محاورہ۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 10 میں آتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، حد چاہیے سزا میں، خالی جگہ بھرنا کے واسطے، اس کا خالی جگہ میں ہوگا عقوبت۔ عقوبت، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، جس کا صحیح جواب ہو جائے گا عقوبت B۔ آگے بڑھتے ہیں، اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سیالکوٹ، D۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 12 ہے، کوکب کے معنی کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ستارہ۔ 13 نمبر سوال ہے، اقبال نے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہاں سے حاصل
की। इसका सही जवाब होगा डी, जर्मनी। 14 नंबर सवाल है, नज़म लेनन खुदा के हुजूर में इकबाल के किस मजमुआ में शामिल है? इसका सही जवाब होगा बाले जिब्राइल। आगे बढ़ते हैं। इस मिसरा में वाव क्या है? लालो जुमरद व जर व गौहर नहीं हूं मैं। इसका सही जवाब होगा हरफे इल्लत। 16 नंबर सवाल है, फैज का कुलियात किस नाम से शाये हुआ? जवाब इसका होगा ए, नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, नज़म निसार तेरी गलियों में ए वतन। नज़म निसार तेरी गलियों में ए वतन फैज के किस शेरी मजमुआ में शामिल है? इसका सही जवाब होगा दस्ते सबा। 18 नंबर सवाल है, तेरी खाली जगह के सिवा रखा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आंखों के। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 और 20 में आते हैं। सवाल नंबर 19 और 20 में आते हैं। सवाल नंबर क्या है? इस शेर को पढ़कर सवाल नंबर 19 और 20 का जवाब दीजिए। क्यों गर्दिशे मद्दाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। 19 नवंबर में पूछ रहा है, इस शेर में मदाम के माना है, तो इसका सही आंसर होगा जमाना। ये आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है, इस शेर का मतलब है। इस शेर का मतलब है, इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, पूरी दुनिया में प्याला व सागर की तरह घूम रही है, ये इसका सही जवाब होगा। 21 नवंबर सवाल में है, हम जमात में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हम क्या है? तो जवाब होगा साबका। ठीक है, जवाब होगा साबका। हम जमात में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हम क्या है? तो साबका है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में आते हैं। सवाल नंबर 22 है, पतीली से पतीला इसम की कौन सी किस्म है? इसमें मुकब्बिर। 23 नवंबर सवाल है, लफ्ज जो किसी चीज को छोटा करके जाहिर करे इसे क्या कहते हैं? तो जवाब होगा इसमें मुसग्गिर। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 में आते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका के माने हैं, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। इसका सही जवाब होगा आसमान से गिरा खजूर में अटका के माने हैं, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। गुरबचन सिंह 25 नंबर सवाल है, गुरबचन सिंह के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? इसका जवाब होगा भूखा सूरज। 26 नवंबर सवाल है, झारखंड के कबाइल में मुंडा स्टो एशियाटिक को अब क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा मुंडारी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है, इस शेर को पढ़िए और सवाल 27 से 28 का जवाब दीजिए। फूलों को आए जिस दम शबनम वजू कराने, फूलों को आए जिस दम शबनम वजू कराने, रोना मेरा वजू हो, नाला मेरा मेरी दुआ हो। जिस दम से कौन सा वक्त मुराद लिया गया है? तो ये हम लोग जानते हैं कि शबनम जो है वो रात के वक्त में गिरती है, रात के पहर में। तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रात का पहर मुराद लिया गया है जिस दम से। 28 नंबर सवाल है, इस शेर में शायर ने क्या आरजू की है? जवाब है फूलों पे इसका सही जवाब होगा दुआ के वक्त आंखों दुआ के वक्त इसकी आंखों से आंसू जारी हो, ये आरजू की है शायर ने। आगे बढ़ते हैं, इस शेर को पढ़िए और 29 से 30 का जवाब दीजिए। कौन सा शेर है? मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं, हर दम मुतगय्यर थे खिर्द के नजरियात। ये शेर है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें तू से तू किसको कहा गया है, तो इसका जवाब होगा खुदा को। फिर 30 नंबर सवाल है, खिर्द के नजरियात के साथ क्या सूरत हाल थी? इसका सही जवाब होगा सी, तब्दील हो रहे थे, नजरियात तब्दील हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मुतगय्यर के माना होता है तब्दील होना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31 में आते हैं। 31 क्या है? इस शेर में कौन सी सनत है? ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, निसाब से बाहर का सवाल है ये। इस शेर में कौन सी सनत है? अहद जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। इस शेर में सनत तजाद है, ठीक है, सनत तजाद है, क्योंकि जवानी और पीरी, पीरी यानी बुढ़ापा, जिद है आपस में। आगे बढ़ते हैं, 32 नवंबर सवाल में आते हैं, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया में, अबस के क्या माना है? जवाब होगा बला वजह, बिला वजह। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल में आते हैं। 33 नंबर सवाल है, नाच न जाने खाली जगह आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका सही जवाब होगा टेढ़ा। 34 नंबर सवाल है, किस शायर की शायरी को दाखिली जज्बात की शायरी कहा जाता है? इसका जवाब होगा मीर तकी मीर। आगे बढ़ते हैं, मिसरा मुकम्मल कीजिए। 35 नंबर सवाल में, कशका खींचा देर में बैठा कब का तुर्के, यहाँ सही जवाब होगा इस्लाम, है ना, सही जवाब यहाँ इस्लाम। कसका खींचा देर में बैठा कब का तुर्के इस्लाम किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल है, हाफिज महमूद शेरानी के मुताबिक उर्दू जुबान की इब्तिदा कहाँ हुई? इसका सही जवाब होगा पंजाब। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब होगा मसूद हुसैन खान। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल है, उर्दू का इब्तिदाई हियोला सिंध में तैयार हुआ। उर्दू का इब्तिदाई हियोला सिंध में तैयार हुआ, ये किस मुहक्किक का नजरिया है? तो इसका सही जवाब होगा सैयद सुलेमान नदवी। 39 नंबर सवाल है, हिंदुस्तानी का इर्तिका के मुसन्निफ कौन है? ये एक मजमून है तबसरा का, इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर महीउद्दीन कादरी, ठीक है। 40 नंबर सवाल है, रेख्ता के माने क्या है? जवाब होगा मिली जुली चीज। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 41 में आते हैं, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, ये कहावत किस भाषा में कही गई है? जवाब होगा इसका ब्रिज भाषा में। 42 नंबर सवाल है, नज़म निसार तेरी गलियों के में सर उठाकर चलने की रस्म से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा कोई एहतजाज नहीं कर सकता। सर ना उठाकर चलने की रस्म से क्या मुराद है? तो कोई एहतजाज नहीं कर सकता, इसका सही जवाब है। 43 नंबर सवाल है, अफसाना निर्वाण का मरकजी किरदार कौन है?
तो इसका जवाब होगा रफत। 44 नंबर सवाल है, अफसाना निर्वाण में किसने खुदकुशी की? जवाब होगा रूही ने। आगे बढ़ते हैं। जकी अनवर जकी अनवर किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब है बिहार, क्योंकि यहाँ झारखंड नहीं है तो इनका ताल्लुक़ ना दिल्ली से है, ना लखनऊ से, ना पंजाब से, तो इसका सही जवाब होगा बिहार। आगे बढ़ते हैं। जकी अनवर का अफसाना निर्वाण किस पस मंजर में लिखा गया है? इसका जवाब होगा 1947 के तकसीम हिंद के पस मंजर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जकी अनवर का पहला अफसाना किस नाम से शाये हुआ? जवाब है कुंदन। 48 नंबर सवाल है, सजरे ममनुआ किसका शेरी मजमुआ है? जवाब है सिद्दीक मुजीबी का। आगे बढ़ते हैं। गियास अहमद गद्दी कौन सा रिसाला जारी किया? सही जवाब है मीरास। इलियास अहमद गद्दी ने झरिया से जो माहनामा जारी किया, इसका क्या नाम है? इसका जवाब है रूप, एक फिल्मी रिसाला था, है ना। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पहली बार अपना प्रेस कायम करने वाला रोजनामा यानी अखबार कौन सा है? जवाब होगा फारूकी तंजीम। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 52। मिसेस जॉन अफसाने में मिसेस जॉन का झगड़ा किससे रहता है? जवाब है रामा से, इसीलिए रामा इसको बुरा भला भी कहता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53 है, इनमें से कौन सा शेर इस बात की दलील है कि फैज के कलाम में रूमानियत और इनकलाब का में इम्तिजाज पाया जाता है? पहला शेर है, रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। ये तो नहीं है। वह बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वह बात इनको बहुत नागवार गुजरी। ये भी नहीं। मकामे फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। ये शेर सही है। गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वह बात इनको बहुत नागवार गुजरी है, मकामे फैज कोई राह में जचा ही नहीं, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54 में आते हैं। सवाल नंबर 54 है, झारखंड और बिहार के अहम अहले कलम किसकी तसनीफ है? ये जो हम लास्ट वीडियो डाले थे उसमें ये क्वेश्चन था, सवाल था। ठीक है, जो वो वीडियो देखा होगा तो 100% ये क्वेश्चन सही किया होगा उसने। झारखंड और बिहार के अहम अहले कलम किसकी तसनीफ है? सही जवाब है जहीर गाजीपुरी। वैसे ऑप्शन से भी इसको बनाया जा सकता है क्योंकि सारा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। 55 नंबर सवाल है, कोड की मदद से बताइए कि गालिब की गजलों की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? मानी आफरीनी, ये तो इनकी शायरी में है। जिद्दत अदा, ये भी है। मामला बंदी, ये नहीं है। नदूरत बयान, ये है। यानी कि अलिफ बे और दाल। तो अलिफ बे और दाल कौन सा ऑप्शन में है? अलिफ बे और दाल सी, यानी इसका आंसर होगा सी, अलिफ बे दाल। मानी आफरीनी, जिद्दत अदा और नुदूरत बयान, ये तीनों जो है गालिब की शायरी में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, कौन सी नज़म इकबाल की नहीं है? तो ये होगा दो इश्क, ये फैज की नज़म है। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा आगरा। फैज किस जुर्म में कैद व बंद की सजा मिली? फैज को किस जुर्म में कैद व बंद की सजा मिली? जवाब होगा रावलपिंडी साजिश केस। 59 नंबर सवाल है, सागर जरा सा गोया मुझको जहां नुमा हो, यहाँ शायर किस सनत का इस्तेमाल किया? जवाब है हुस्ने तालील। ये भी
निसाब से बाहर का सवाल है। 60 नंबर क्वेश्चन है, मरता हूं पर ये आरजू है मेरी, तो यहाँ खाली जगह में होगा खामोशी। मरता हूं खामोशी पर ये आरजू है मेरी, खा खामोशी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61 में आते हैं। सवाल नंबर 61 है, नज़म एक आरजू के शायर का नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा इकबाल। 62 नंबर सवाल है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, फैज के किस शेरी मजमुआ में शामिल है? जवाब है नक्शे फरियादी। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है, जलवत का मुतजाद क्या है? तो इसका जवाब है खिलवत। 64 नंबर सवाल है, इकबाल ने किस शायर से इस्लाह ली? जवाब होगा इसका दाग। 65 नंबर सवाल है, फैज का यौम पैदाइश क्या है? जवाब है 13 फरवरी 1911। 66 नंबर सवाल है, नाविल फायर एरिया में सहदेव को नौकरी दिलाने के लिए गांव से शहर कौन लाया? शकूर नहीं, रहमत नहीं, कालाचंद नहीं, जगेसर दुसाद नहीं। यहाँ कुल मिला के इसमें चारों ऑप्शन गलत है। ननकू नाम था उसका, ननकू नाम था। और ननकू ने सहदेव को, रहमत मियाँ को और जगेसर दुसाद तीनों को नौकरी दिलाने के लिए गांव से शहर लाया था। तो ये हमको लगता है कि आप लोगों को इसका नंबर मिलेगा, या तो फिर आप लोग इसको चैलेंज भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 67 में आते हैं। सवाल नंबर 67 है, नावल फायर एरिया में सहदेव ने कितनी जमात तक तालीम हासिल की? इसका जवाब होगा 10वीं जमात। 68 नंबर सवाल है, फायर एरिया में जलिया की शादी कहाँ हुई? जवाब है धर्मपुर में। ठीक है, धर्मपुर में इसकी शादी हुई थी जलिया की। जलिया कौन थी? उसकी महबूबा थी। आगे बढ़ते हैं। शीन अख्तर कहाँ पैदा हुए? गया में। इसका जवाब होगा गया में। आगे बढ़ते हैं। शीन अख्तर की पहली तनकीदी किताब कौन सी है? जवाब है अदसा। 71 नंबर सवाल है, क्या है? जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? से सब्ज व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक 3 शेर होता है इस गजल में। तो ये शेर किस जुमरे में रखा जाता है? ये तीनों असार किस जुमरे में रखा जाता है? तो इसका जवाब होगा जिद्दत तराजी के जुमरे में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 72 है, शीन अख्तर का असल नाम क्या है? जवाब है सैयद साबिर हुसैन। 73 नंबर है, गयास अहमद गद्दी का पहला अफसाना कौन सा है? तो गयास अहमद गद्दी का पहला अफसाना कौन सा है? गयास अहमद गद्दी का पहला अफसाना कौन सा है? जवार भाटा, तजदो, पागल खाना या दीमक? तो यहाँ जवार भाटा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के लिहाज से, क्योंकि जवार भाटा जो है ये मिर्जा हामिद बेग के मुताबिक गयास अहमद गद्दी का पहला अफसाना जवार भाटा है। ठीक है, और इसका शाहिद तस्लीम के मुताबिक देवता इसका पहला अफसाना है गयास अहमद गद्दी का। यानी कि इसमें इख्तिलाफ है। अगर यहाँ देवता होता तो जवार भाटा की जगह अगर देवता होता तो देवता भी इसका पहला अफसाना माना जा सकता था, लेकिन देवता नहीं है, जवार भाटा है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, जवार भाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74 में आते हैं। इस शेर को मुकम्मल कीजिए। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है? इसका
सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सही जवाब होगा मैं नहीं जानता दुआ क्या है। 75 नंबर सवाल है, किस शायर के मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गजल में आप बीती और जग बीती अपनी गजल में आप बीती को जग बीती बना दिया है? जवाब होगा मीर तकी मीर। आगे बढ़ते हैं, साबका वाले मुरक्कब लफ्ज की निशानदेही कीजिए। इसका जवाब होगा खुशकिस्मत। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर सवाल है, फायर एरिया के मजदूर जिन घरों पर किराए में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता है? जवाब होगा ढोड़ा। 78 नंबर सवाल है, नावल फायर एरिया में किसकी गुमनाम मौत वाक़ हुई? जवाब होगा रहमत मियां। आगे है 79, मजुमदार ने सहदेव को नौकरी का इंतजाम कहाँ कराया? पत्थर खेड़ा कोलरी में कराया था। ठीक है, 80 नंबर सवाल है, जमीन के अंदर मौजूद कोयले की मोटी परतों को क्या कहा जाता है? जवाब होगा सीम। 81 नंबर सवाल है, नावल फायर एरिया को किस साल साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया? इसका सही जवाब होगा 96। ठीक है, 96 में अवार्ड का ऐलान हुआ था और 97 में इन्होंने रिसीव किया था दिल्ली जाके। ठीक है, 96 के लास्ट में दिसंबर के महीने में और 97 के फर्स्ट में इन्होंने इसे रिसीव किया था। तो ये अवार्ड जो है साल 96 का ही अवार्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 82, उर्दू ज़बान के मुतालिक मसूद हुसैन की राय क्या है? उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, उर्दू कन्नौजी बोली से निकली, बुंदेली से निकली है, पंजाबी से निकली है? सही जवाब बी होगा, उर्दू खड़ी से बोली से निकली है, ये इनका मानना था मसूद हुसैन खान का। 53 नंबर सवाल है, नावल फायर एरिया में हिंदुस्तान की किस जगह का जिक्र है? जवाब है छोटा नागपुर का। आगे बढ़ते हैं, नावल फायर एरिया में काला चंद कितनी रकम कर्ज लेता है? ये बहुत अंदर से सवाल है, ये मेरे भी जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है 200 रुपया होगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसका जवाब 200 रुपये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर सवाल है, किस शायर ने अपने कलाम के जरिए खुदी, अमल और जद्दोजहद का पैगाम दिया? इसका सही जवाब होगा इकबाल। 86 नंबर सवाल है, अफसाना परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी में लड़के ने माचिस की डिबिया में क्या रखा हुआ था? जवाब होगा तितली। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर सवाल है, मिसेस जॉन कहाँ रहती थीं? तो इसका सही जवाब होगा चटर्जी कंपाउंड में। ठीक है, एकदम हूबहू नकल है ये सारा क्वेश्चन मेरी किताब से। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर सवाल है, अफसाना मिसेस जॉन में मुसन्निफ ने मिसेस जॉन को कितने रुपए दिए थे? 15 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए? ये मेरे ख्याल से चारों ऑप्शन गलत है, इसका सही होना चाहिए 50 रुपये। 50 रुपये। रावी मिसेस जॉन को 50 रुपये कर्ज देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी या तो इसका भी नंबर मिलेगा आपको या तो फिर चैलेंज करना होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर
89 में आते हैं। इनमें कौन सा इमला सही है? शहरुल बयान ये गलत है, शहरुल बयान ये भी गलत है, सहरुल बयान ये भी गलत है, और सी इसका सही है, सहरुल बयान। सीन और हे और रे और अल बयान, ये इसका सही जुमला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल में आते हैं। इनमें कौन सा इमला सही है? यहाँ भी वही पूछ रहा है। निसार सीन से लिखा हुआ यहाँ, ये गलत है। निसार यहाँ स्वाद से लिखा हुआ, ये भी गलत है। नजार लिखा हुआ, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी, निसार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल है। क्या है? क्या 90 नंबर, हाँ 91, 91। मिसरा मुकम्मल कीजिए। यूं न था मैंने चाहा था यूं हो जाए। यूं न था मैंने फकत, यहाँ क्या होगा? फकत, फकत, यहाँ क्या होगा? फकत। यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, ये इसका सही मिसरा होगा। 92 नंबर है। मिसरा मुकम्मल कीजिए कि मियाँ खुश रहो हम कर चले, खाली जगह में होगा दुआ। मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93, 93 नंबर सवाल है। शेर मुकम्मल कीजिए। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में आए थे क्या कर चले, इसका सही होगा कहीं क्या, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में आए थे क्या कर चले, इसका सही होगा। 94 नंबर है सवाल। कोड की मदद से बताइए इनमें कौन सा जोड़ मुतरादिफ की मिसाल है? इत्तेहादो इत्तेफाक ये है। उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव ये नहीं है, ये जिद है। मेल मिलाप ये है। ऐश आराम ये है। यानी अलिफ जीम और दाल, अलिफ जीम और दाल, ये अलिफ जीम और दाल, बी नंबर सही है, अलिफ जीम और दाल। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा लफ्ज मुरक्कब अल्फाज की मिसाल है? ए में है पनचक्की, बी में आमदो रफ्त, सी में बढ़ चढ़, और डी में है खैरो शर। आमदो रफ्त जिद है, जिद है। खैरो सर जिद है। बढ़ चढ़ ये मुतरादिफ है। इसका सही जवाब होना चाहिए पंचक्की, पंचक्की। 98, काम तमाम होना के माना है, इसका सही जवाब होगा खत्म होना। 97, दहर के माना बताइए, इसका जवाब होगा जमाना। 98, विस्ल का मुतजाद क्या है? तो इसका जवाब होगा हिज्र। 99 का 99 में है अहदे जवानी कैसे गुजरा। तो अहदे जवानी रो रो काटा, ये शेर है ना। अहदे जवानी रो रो काटा, तो रोते हुए। 100 नंबर है मजबूरियों पर किस बात का इल्जाम है? तो ये है खुद मुख्तारी का। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किसका कितना स्कोर आ रहा है, और ये भी बताइएगा कि मेरी किताब से आप लोगों को कितनी मदद मिली। अगर आप अगर हमें बताइएगा तो इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं आगे इसी तरह काम करता रहूँगा। और मैं दुआ भी करता हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसमें आपको अच्छे नंबरात हासिल हो, और आपका जो
آپ نے جس مقصد کے تحت یہ ایگزام دیا ہے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے، یہی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، صبح خیر۔